इमरजेंसी का जुगाड़ सही हो, वो रख दीजिए ना। वो क्या होता है, पेट को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आ गए, इसमें तो मेरे को फंसा गया। ये कब हरद्वार जाएगा, कब अपनी बहन को उठाएगा, कब हल्द्वानी निकलेगा। मेरे को तो हरद्वार तक ही जाना है, जिसके जाना है ज्यादा पहुंच ही जाऊंगा लटा पटक के। गाड़ी लग जाएगा, कार से जाएगा। तो जहाँ पे भी बस बुस मिलेगी मैं वहीं से पकड़ दूंगा, रास्ते से रुड़की राड़की से चेंज कर दूंगा। मैं रुड़की रुड़की के आसपास पे कर दूंगा, बस बस में ना स्टेशन पड़ेगा।
Good afternoon, everybody. Thanks for joining us. Mr. Neeraj Jain will start the session now. Thank you. Over to you, Neeraj. Thank you very much, Tejpalji. And a very, very warm welcome to all my esteemed friends and patrons. It is such a pleasure having been able to connect with you after a very long time. The earlier part of this year was rather tough on all of us, and we took time to get back our momentum, and the market didn't lose its momentum, though it continued to rise and rise and rise, and today we are at dizzying heights of 60,000 plus on the Sensex, which we never imagined uh, was going to come in so soon, particularly after what had happened last year. But markets have their own way, and I and we have been receiving a lot of queries as to what next, क्या करें, profit market अब तो crash करेगी, अभी क्या कर सकते हैं इसके बारे में. तो I think we took this opportunity कि काफी टाइम हो गया था आप सबके साथ कनेक्ट किए भी, और कम से कम हम अपना पक्ष रखते हैं, और कुछ सवाल होंगे तो उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे. मार्केट्स हैव देयर ओन वे, बट एक चीज पक्का है कि मार्केट्स जो हैं वो काफी इंटेलिजेंट होती हैं अपने में, और वो कई चीजें अपने आप सेंस कर लेती हैं जो कि हमारे को बाद में पता लगता है. तो with this, I again wish to very warmly welcome you, and I wish to start my presentation. This presentation will be a short one, briefly outlining what we wish to say, and during this presentation you may have questions, so please use the chat to write those questions to us. We will Tejpalji will be aggregating them, and post the presentation we'll try to answer all your questions. With that, allow me to start. Thank you so much again. At 60,000 there is a sense of joy कि हाँ हम लोग invested रहे, और we have our portfolios have gone up substantially, but at the same time there is a strong sense of disbelief कि यार ये हो कैसे गया. सब जगह आसपास तो हालत खराब है. हम किसी से भी बात करें अपने फ्रेंड सर्कल में तो हर कोई, ऑफ कोर्स कोरोना ने जो इफेक्ट किया है वो तो किया ही है, लेकिन बिसाइड्स दैट जो ब्रॉडर इकोनॉमी है वो तो हालत खराब है. आई हैव सीन सो मेनी friends and customers of ours who have whose businesses have done very, very badly, but some customers, their businesses are roaring. Particularly small businesses have done very there is a lot of stress as I see it in small businesses, and people associated with small businesses, their jobs are also under suspense. People have had pay cuts, etc. So there is a wide disconnect as people see it with the Sensex and with the broader market as such. Now, let me try to explain to you. See, the Sensex is nothing but a collection of 30 stocks, and those 30 stocks are essentially India's top corporates.
out of those 30 stocks, about 40% are financial services, which include banks and insurance companies and mutual funds and brokerages, etc. 20% in, nothing has happened to those 40%. 20% constitute the IT industry. In fact, the IT industry has done so well. People in the IT sector are now spoiled for choice as we look at it. Salaries, they are asking for, जिसको कहते हैं मुंह मांगी salaries मांग रहे हैं. People are switching jobs at random, and they are getting even twice the amount of salaries that they used to get. There is a huge shortage of skills. The pharma, FMCG, etc. That forms another 15% of the Sensex. Nothing has happened there. Actually, pharma has done very well. FMCG has not done as well as the other sectors, but it has done reasonably well. So what is see, if we look at it, travel and tourism, there is hardly any representation on the Sensex. Retail, there is just 1% representation on the Sensex. So actually, if you look at it, businesses or sectors which have done badly, they don't have representation on the Sensex. And that is why there is a huge disconnect. On the contrary, what has happened is corporate India has tightened its belt, saved on cost. As a result, their profitability has actually gone up, and that is what the market is cheering about. Now, ये तो हो गया. अब आगे क्या करें? चलो, पहले ये तो देख लेते हैं कि पिछले 18 महीनों में who have done well. किसी ने सोचा भी नहीं था कि metals as a sector will do so well. It has, since April of last year, it has gone up nearly 3 times. IT as a sector has gone up 2 times. Consumer durables, pharmaceuticals, even realty as a sector has done well. And of course, energy, the power stocks, etc. They are simply, booming. आगे क्या करेंगे ये देखते हैं. तो ये सवाल जो हमारे को आता है most of the times कि what next? अभी तो 60,000 पे पहुंच गए हैं, अभी क्या करना चाहिए? नीरज जी, अब आई थिंक ऐसे करते हैं कि आधा स्टॉक्स बेच देते हैं. अभी तो मार्केट बिल्कुल क्रैश ही करने वाली. हमारे को क्या लगता है कि ये जो फेज ऑफ द मार्केट है, ये कुछ सिमिलर है टू 2003, 2003 से लेके 2004-5 तक का फेज है, जिसमें कि market had just about started to take over, to take off. वाजपेयी जी के रिफॉर्म्स जो थे वो प्ले आउट हो रहे थे. इफ यू रिमेम्बर कि पहली बार हमारे को 1 रुपए का सेस लगा था on diesel and petrol, which started the golden quadrilateral project. And during his time, सरफेसी एक्ट आया था, बैंक पावर रिफॉर्म्स होने शुरू हुए थे. तो वो वाला फेज जो है वो शुरू हुआ था. और सेंसेक्स जो है 2003 से लेके 2008 तक 6.9 टाइम्स बढ़ा था. 6.9 टाइम्स. हम में से काफी जो थे वो उस फेज के टुवर्ड्स द एंड में मार्केट में आए थे. लेकिन 2003 में 2004 में हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया था, और द गोइंग वाज वेरी गुड फॉर अस. हमको लगता था कि पैसा बनाना बहुत आसान, until 2008 happened. बट अगर आप ये जर्नी भी देखेंगे 2003 से लेके 2008 की, जब मार्केट 6.9 टाइम्स ऊपर गई थी, तो कितनी करेक्शन हुई थी जो कि 15% से ऊपर की करेक्शन थी. सबसे पहली करेक्शन तो जब यूपीए पावर में आई थी तभी हुई थी. इफ यू रिमेम्बर, डेट जो थी वो मई 13 थी, और सेंसेक्स को 2 बारी सर्किट लगा था. वो हमने बिजनेस शुरू ही किया था, और पहला हमारा एक्सपीरियंस था कि वॉलेटिलिटी क्या होती है.
बट उसके आगे भी अगर आप देखें तो 2006 में भी 31% मार्केट नीचे आई, फिर 2007 में 17% नीचे आई, फिर 2007 में ही 14% नीचे आई, बिफोर इट अल्टीमेटली crashed in 2008. सो ये वाला जो फेज था, ये मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का फेज था, मैसिव। उस समय कितने रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन, अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट जो दिल्ली के और बॉम्बे के एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हुए थे, कितने रोड प्रोजेक्ट्स जो थे वो एन्युटी बेसिस के ऊपर डिक्लेयर वो हुए थे, पावर प्रोजेक्ट कितने लगे थे। आपको याद होगा रिलायंस पावर का लास्ट जो जब क्रैश होने से पहले रिलायंस पावर का इशू आया था और ऐसा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, इंडिया का लार्जेस्ट उस टाइम पे पब्लिक इशू था, और ऐसा ओवर सब्सक्राइब हुआ था कि जैसे कि पता नहीं, मतलब अभी उसके पास कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन उसकी मार्केट कैपिटलाइज उस टाइम पे आपने सुना होगा कि अनिल अंबानी जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था कुछ दिनों के लिए, और आज वही अनिल अंबानी जो है उनको वो मतलब अपने आप को बैंक्रप्सी से प्रोटेक्ट कर देंगे। तो ये चार्ट दिखाने का हमारे को मकसद ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम 2003 प्लस वाले फेज में हैं, तो आगे अगर मेरे को नहीं मालूम कि 6.9 टाइम्स बढ़ेगा बाजार यहाँ से या 2 या 3 गुना बढ़ेगा, बट ये जरूर लग रहा है कि जो एनवायरनमेंट है ये कुछ उसी तरीके का है, और बड़ी करेक्शंस जो हैं वो हमारे को इन आर स्ट्राइड लेनी पड़ेगी। इस फेज में हमारे को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बने रहना है। और अगर हम बने रहेंगे और ये जो आसपास का नॉइज है उसको हम अगर फिल्टर कर लेंगे, तो हमारे को लगता है कि अगले 4-5 साल के अंदर काफी बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, क्योंकि काफी कुछ जो इंडिया के लिए राइट हो रहा है इस समय। इंडिया जो है विट इज दुनिया की काफी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट है इस समय। चाइना तो ऑलमोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी ही कहा जाएगा, और अभी यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर, 20 ट्रिलियन डॉलर की जर्नी जो है वो अभी हमारे आगे है। बहुत यंग पॉपुलेशन है, बहुत एस्पिरेशनल है। जो बैंक्स की प्रॉब्लम थी लास्ट 5-7 साल की, वो बैंक्स की प्रॉब्लम जो है वो अब खत्म होती नजर आ रही है। जो एनपीए साइकिल जो है वो खत्म हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद भी जो बैंक्स हैं वो काफी स्ट्रांग निकल के मतलब इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी हम सोचते थे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 15% के हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रेट्स हो जाएंगे, लेकिन नया कोई प्लांट सेटअप करे तो उसके लिए 15% जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। और जो टैक्स टेररिज्म जो है वो गवर्नमेंट को थोड़ी अक्ल आनी शुरू हुई है, और पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज होने शुरू हुए। होपफुली ये जो टैक्स टेररिज्म का भूत जो है वो गवर्नमेंट के सर से उतरेगा। कॉस्ट ऑफ फंडिंग टू डेकेड लो है। क्रेडिट ऑफटेक जो है वो मल्टी डेकेड लो है, क्योंकि कोई लोन लेना ही नहीं चाह रहा है इस समय। इंडिया ने अभी पिछले 2 साल पहले एक डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक बनाया है, जो कि ग्लोबल फंड्स को अट्रैक्ट करके अभी गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ की उसके अंदर सीड कैपिटल डाली है। और ये जो सीड कैपिटल है ये अट्रैक्ट करेगी वेरियस लॉन्ग टर्म फंड्स जिनका व्यू 20 साल 30 साल का है। इनफैक्ट अगर इफ यू लुक एट जापान, तो वहां पे तो जो फंडिंग होती है वो 40 साल के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग होती है। आपको पता होगा कि जो हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जापानीज फाइनेंस कर रहे हैं, बहुत लंबी फंडिंग है। गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म पाथ पे है। अब जो उसका सेकंड टर्म है उसके अंदर तो काफी मतलब गियर्स उन्होंने चेंज किए हैं, और लग ही नहीं रहा है कि ये सेम गवर्नमेंट थी जो पिछले टर्म में थी। लैंड एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को लगता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2012 में पास हुआ था वो फुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। 2-3 साल लगे थे उसको फुली ऑपरेशनल होते हुए, लेकिन अभी आप कहीं पे भी नहीं देखते हैं कि कहीं पे भी कोई लैंड एक्विजिशन में तकलीफ है।
गडकरी जी ने लाखों किलोमीटर के रोड्स बना दिए हैं, और अभी उनको कहीं हम अखबार में नहीं पढ़ते हैं कि कोई फार्मर प्रोटेस्ट में खड़े बैठे हुए हैं ड्यू टू लैंड एक्विजिशन इश्यूज। फार्म लॉज अभी इम्प्लीमेंट होंगे, जो भी है, मतलब आई थिंक कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, बट मेरे हिसाब से फार्म लॉज जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी ओपन अप करेंगे। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का नया एक्ट जो है वो इन दी वर्क्स है, जिसमें कि फोकस ये है कि इंडस्ट्री को बिजली नॉर्मल दरों पे मिले, बजाय हम स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि फार्म को और पब्लिक को, जो सिटीजन ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनको बिजली सब्सिडाइज करती है एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडस्ट्री, जिसके कारण इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड में compete ही नहीं कर सकती। तो ये जो एक्ट आ रहा है ये probably इस चीज को चेंज करेगा। रेरा जो कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है। कुछ लेबर लॉज भी जो है, नया लेबर कोड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, एंड आई थिंक उसके कारण और भी चीजें जो हैं वो लेबर, एटलीस्ट ऑन द लेबर फ्रंट, काफी इम्प्रूव होनी चाहिए। पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो गवर्नमेंट यूज करती थी वर्ड डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। पहली बार मैंने देखा है कि कोई गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन शब्द का जो है वो खुले आम प्रयोग कर रही है। आई थिंक इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल कैपिटल अर्न की है, आई थिंक ये समय आ गया है कि उसको वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो अच्छे से खर्च करें। और पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स अपने काम से, ऑफ कोर्स, या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, पब्लिक इस समय ये इस गवर्नमेंट को बाय एंड लार्ज बहुत ट्रस्ट करती है कि ये कुछ गलत नहीं करेगी। कांग्रेस ने अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो करप्शन में खर्च कर दी। ये गवर्नमेंट ने फिलहाल अभी ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बहुत जुडिशियसली खर्च कर रहे हैं। एक और चीज बहुत अच्छी है जो देखने में आती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत कम्पिटिटिव हो गई हैं। अभी पीछे आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कोई केरला से एक यूनिट उठ के तेलंगाना चले गया बिकॉज केरला में उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था। और द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, the government of Telangana welcomed that state. इनफैक्ट अपना प्राइवेट प्लेन भेजा था उन्होंने उसको, उस एंटरप्रेन्योर को अपने स्टेट में हैदराबाद बुलाया, और उसको जो भी टर्म्स थे उसके अच्छे टर्म्स के ऊपर उसको अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने। गारमेंट मैन्युफैक्चरर था। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो पहले क्या होता था कि केवल 2 ही स्टेट्स होती थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स होती थी। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आजकल इवन यूपी, अगर आप यूपी को देखेंगे तो यूपी बहुत ही अग्रेसिवली, हमारे नोएडा के पास एक एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ है, उसके आसपास काफी बड़ा टॉय पार्क बनाया है। इस समय स्टेट गवर्नमेंट्स लैंड बैंक्स के ऊपर बैठी हुई है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जाता है तो दे आर विलिंग टू स्ट्रेट अवे एलोकेट लैंड टू देम। और इस पीरियड के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लास्ट 5-7 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। रोड नेटवर्क तो बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क बन गया है हमारी कंट्री में। डीएफसी जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, नई गैस ग्रिड बन रही है, और ऐसा इतना सब कुछ हो रहा है कि कई चीजों के बारे में तो हमारे को पता भी नहीं। तो इस क्लाइमेट में अगर हम देखेंगे कि हमारे को जो पिछला केपेक्स साइकिल हुआ था उसमें हमने क्या गलतियां की और क्या हम आगे चल के वो गलतियां करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगला जो 5-7-10 साल है वो हमारे लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले कि लास्ट केपेक्स साइकिल में करप्शन जो था वो रैम्पेंट था, और उस करप्शन के कारण जो फाइनेंसिंग वगैरह भी हुई प्रोजेक्ट्स की, अगर आप देखेंगे कि अगर आपको याद होगा तो जितने भी बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए वो आइदर जेल में हैं या बैंकरप्ट हैं।
शॉर्ट टर्म हमारे बैंकिंग सिस्टम जो था वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने के लिए के गियर्ड अप ही नहीं था, और वो 20-20 25-25 साल के जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रहा था। प्रोमोटर्स भी जो थे उन्होंने इतनी इतनी ग्रोथ देखी नहीं उसके, और ग्रीड के कारण और नाइविटी के कारण वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश करने में लग गए जिसमें कि मतलब उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और गिवन जो हमारे गवर्नमेंट का सेटअप था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें वो फंस के भी रह गए कुछ। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो कि उनके पास अच्छे अच्छे प्रपोजल्स लेके जाते थे। एक तरफ प्रपोजल उनके बिजनेस को बिकवाने का होता था, और दूसरी तरफ बिजनेस में कोई कोई हिस्सा बिकवाने का होता था, और दूसरी तरफ किसी और के बिजनेस में हिस्सा खरीदने का होता था। तो अपनी फीस तो उन्होंने फटाफट कमा रहे थे, लेकिन जो प्रोमोटर्स थे, जो गलेबल थे, जिन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, और उनसे काफी चीजें उलट पुलट करवा गए। क्लासिक केस अगर देखें तो यूनिटेक का था, जिसको इतना बड़ा डेट जो था वो दिलवा दिया, और ऊपर से अनरिलेटेड बिजनेसेस में टेलीनॉर जैसे बिजनेसेस के अंदर उसको इन्वेस्ट करवा दिया। आज यूनिटेक की का परिवार जेल में है। ईगो, मतलब आजकल तो खैर टाटा ग्रुप की चांदी है, उसके स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल, बट ऐसी बड़ी बड़ी एक्विजिशंस कर ली हम लोगों ने इन 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 डिफरेंट जियोग्राफीज, जो कि अभी तक हजम नहीं हो रही। और ये सब जब बाद में जब 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 कोर्ट कचहरियों के अंदर गया, तो वहां पे जाके आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ। कोल को क्या किया जुडिशरी ने, स्पेक्ट्रम का क्या किया। तो आई थिंक ये चीजें जो हैं दे हैव टू बी रिमेम्बर्ड। एंड कोशिश ये देखना पड़ेगा हमारे को कि कौन ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी भी सेम गलतियां करने जाएंगे। थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा मैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। ये जो मोटा सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो जो टोटल अपनी कंट्री के अंदर साल भर में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ जो डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ जो पैसा जाता है उसको अगर हम निकाल दें, तो इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी मतलब चीजें बनती हैं, वो उसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। हमारी कंट्री के अंदर 2004 से लेके 12 तक ये GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 17% की ग्रोथ रही थी। अगर आप देखेंगे तो चार्ट, तो 2004 से लेके 2004 से लेके 2012 तक कितनी जबरदस्त ग्रोथ हुई थी GFCF में। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक केवल 6% की ग्रोथ ही रही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्सेस कैपेसिटी खड़ी हो गई थी कि उसको हजम करते करते, उसको इनटू प्ले लाते लाते ही बहुत समय बीत गया। लेकिन अब जो है ये ट्रेंड बदल रहा है, और हम 2023 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि $1 ट्रिलियन का GFCF होगा इंडिया के अंदर। 1 ट्रिलियन का मैं आपको एक उदाहरण, 1 ट्रिलियन कितना होता है कि GDP, 1 ट्रिलियन की GDP की केवल 17 कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, केवल 17 कंट्रीज। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतना पैसा जो है वो कैपिटल के तौर पे खर्च होने वाला है हमारी कंट्री के अंदर ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ GDP देखें, तो जो ये 2020-21 का लेवल है, कोरोना के कारण भी काफी स्ट्रेस था इसके अंदर, तो ये 2001 का लेवल है। ये जो 26% 27% का है, 2001 में ये बॉटम आउट, ये इस लेवल पे था। उसके बाद जो था, अगर 2007 के अंदर ये पीक किया था एट 37%। So we are at a low as far as GFCF as a percentage of GDP is concerned, and it is our we believe that यहाँ से काफी काफी जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। अपनी कंट्री के अंदर सबसे बड़ा पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही होता है।
अभी भी प्राइवेट सेक्टर इतना सक्षम, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हो गया है ओवर द लास्ट, अगर अब 20-25 साल लिबरलाइजेशन के बाद से 30 साल के अंदर अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी भी गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट कर सकती है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। और जो गवर्नमेंट एक्चुअली काउंटर सिक्लिकल होती है, जब तकलीफ होती है तब गवर्नमेंट आके पैसा खर्च सकती है, क्योंकि अगर रिसेशन चल रहा होता है तो प्राइवेट सेक्टर आके पैसा नहीं खर्चता। तो गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी उन्होंने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन खड़ी की है जिसमें 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स करने जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले अगर आप ने सुना होगा तो एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो कि 6 लाख करोड़ की है, जिसमें कि डिफरेंट नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स जो हैं गवर्नमेंट वो प्राइवेट सेक्टर को, या कुछ चलते हुए प्रोजेक्ट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को मोनेटाइज देना चाहती है। तो ये सब जो है अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट का जो इंटेंट है वो it continues to display that the government is really interested in pushing growth into pushing the economy towards growth. So I think it is very very important. अगर आप गवर्नमेंट के एक्शन देखेंगे तो टैक्सेशन की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का रुख जो है वो थोड़ा सा नरम हुआ है, थोड़ी सेंसिबल हुई है। और गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जो कि उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे तो कि बैंक्स में कितने बैंक्स को आपस में मर्ज कर रहे हैं। 2 बैंक्स को इस साल प्राइवेटाइज करना है, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया। एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट मींस बिजनेस। ऊपर से ये चाइना +1 हो गया। इसमें तो मैं तो ये मानूंगा कि हमारे देश की किस्मत अच्छी थी कि यूएस ने, ट्रंप जी ने चाइना को थोड़ा सा तंग किया और उनका ट्रेड वॉर शुरू हुआ। और उसके बाद जो चाइना ने हरकतें करनी शुरू की हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में है, चाहे वो लद्दाख में है, चाहे वो ताइवान में है, आई थिंक दुनिया थोड़ी चाइना से घबरा गई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई डोंट सी कि चाइना will become irrelevant. No, China cannot become irrelevant. But अगर चाइना 100 रुपए का काम करता है और 10 रुपए का काम हमारे जैसी कंट्री के अंदर आ जाए तो हमारे लिए 10 तो हमारे से संभलेगा नहीं, इतना ज्यादा काम है। तो और गवर्नमेंट जो है इस अपॉर्चुनिटी को सेंस करके गवर्नमेंट ने चाहे वो टैरिफ इंक्रीजेस करके या नॉन टैरिफ तरीके से कोशिश कर रही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है इस चीज का फायदा उठाए। और सबसे बड़ा इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो पुश है वो टुवर्ड्स PLI है। अब PLI क्या है? PLI इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 13 सेगमेंट्स के अंदर चैंपियंस चूज करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप बताइए, आप प्रेजेंटेशन दीजिए हमारे को कि हम आप ये जो हमारे डेजिग्नेटेड सेक्टर्स हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितनी प्रोडक्शन करेंगे। और वो प्रोडक्शन जो है वो और इतनी पॉपुलर हुई ये वाली स्कीम के उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सोलर पैनल्स के लिए गवर्नमेंट की जो PLI की स्कीम थी वो 10 गीगावाट के पैनल्स बनाने की थी और उसमें बिड्स आई तकरीबन 55 गीगावाट्स की। तो इतना जबरदस्त इंटरेस्ट है इस समय। और क्योंकि इंडस्ट्री को दिख रहा है कि डिमांड भी बढ़ रही है और अगर ये चैंपियंस जो हैं वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है वो अचीव कर पाए तो हमारी कंट्री के अंदर ये जो सेगमेंट्स हैं इसके अंदर वर्ल्ड स्केल के जायंट्स बन जाएंगे। सोलर पैनल्स का ही अगर मैं एग्जांपल लूं तो
अंबानी, मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और दूसरी तरफ अडानी ऑलरेडी इसके अंदर थे और वो भी बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये तो एक जिसको कहते हैं कि कैटलिस्ट की तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, और थैंकफुली ये WTO वगैरह का जो झंझट है ये भी अभी कम हो गया है, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पे चल रही थी, अब डीग्लोबलाइजेशन के रास्ते में चल रही है। हर कंट्री आत्मनिर्भर बनना चाहती है, और अगर आप अभी भी देखेंगे पिछले कुछ दिनों में कि चाइना में जो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स के कारण चीजें काफी आउट ऑफ गियर चली गई हैं। अगर हम अपना ट्रेड इम्बैलेंस देखें तो हमारी कंट्री इस समय 180 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट रन करती है, और ये अगर ये जो 13 सेगमेंट्स हैं उसके अंदर एनुअल प्रोडक्शन अगले 5 साल के अंदर लगभग 37 बिलियन डॉलर्स की प्रोडक्शन जो है वो होनी चाहिए। तो अभी भी जो ट्रेड इम्बैलेंस है ये बहुत ही अभी कोई कम होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन कम से कम एक ट्रेंड जो है वो तो बदले कम से कम। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर था जो कि हमारा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। कोविड के बाद इस सेक्टर के अंदर भी कुछ जान आई है, और हमारे को दिख रहा है कि ऑफटेक जो है वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट दोनों में कमर्शियल रियल एस्टेट में मेरा मतलब है ऑफिस स्पेस की तरफ, कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट के लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के कारण ऑफिस स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन हम कुछ रीट्स और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे उनको कोई श्रिंकेज नहीं लग रही उनकी ऑफटेक के अंदर, बल्कि मतलब जो उनके टेनेंट्स हैं वो अपने रिन्यूअल्स जो हैं वो करते जा रहे हैं, और हमारे को लगता है कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अब क्योंकि सब IT कंपनीज ने भी बोलना शुरू किया है कि लोग ऑफिसेज वापस आए। हमारे को रियल एस्टेट तो मतलब ज्यादा समझ नहीं है एज अ सेक्टर, बट हमारे को लगता है कि जो सेक्टर्स ये रिवाइवल से बेनिफिट करेंगे, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की जो कंजम्पशन है, पेंट्स एक्सेट्रा की कंजम्पशन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंजम्पशन है, वो सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। और अगर मैं देखता हूं कि जैसे IT सेक्टर और कुछ और सेक्टर्स में जहाँ पे लोगों की सैलरीज जो हैं वो बढ़नी भी शुरू हो गई हैं, आई थिंक अगर वहाँ की स्पेंडिंग रियल एस्टेट में आएगी तो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर कुड पॉसिबली डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। टू सम इट अप, कि हमारे को क्या लगता है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आगे चल के जिसमें स्ट्रॉन्ग केपेक्स हो सकता है। सोलर पावर एक सेक्टर है जो कि हमारे को लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो COP 26 के नॉर्म्स के में बंधी हुई है, और इनफैक्ट हम लोगों का टारगेट तो 100 गीगावाट्स था, अभी हम 150 गीगावाट्स की बात करते हैं, और ये ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है। उसमें अगर बड़े ग्रुप्स लाइक रिलायंस एंड अडानी आके कमिट करते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि वो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जो चीज रिलायंस करता है और जिस स्केल के ऊपर करता है, उसके बाद कोई दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो ये इन्वेस्टमेंट है USD 80 बिलियन की वो नहीं होगी। स्टील गवर्नमेंट कहती है कि 130 मिलियन TPA से स्टील की कैपेसिटी बढ़ा के 300 मिलियन TPA तक लेके जानी है। कहते हैं कि स्टील हम अपनी कंट्री के लिए तो प्रोड्यूस करें ही, और वर्ल्ड के लिए भी प्रोड्यूस करें। इनफैक्ट एक PLI है जो कि स्पेशलिटी स्टील्स के लिए बनाई को इनकरेज करने के लिए बनाई गई है। और आई फील दैट ये वाला जो सेगमेंट है स्टील का, वो हर एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस दौरान स्टील की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, तो उसकी जो उसकी डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं
उनको बहुत तकलीफ हो रही है, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो वाइट गुड्स हो, एटसेट्रा। तो स्टील एज अ इंडस्ट्री शुड, उसके अंदर काफी बड़ी एक्सपेंशन होनी चाहिए। सीमेंट, इनफैक्ट स्टील का एक्सपेंशन होने का कारण एक और भी है कि इस समय जितना भी डेट था उन्होंने अपनी बुक्स पे, इतने पैसे कमाए हैं उन्होंने लास्ट 1-1.5 साल के अंदर कि वो सारा डेट ऑलमोस्ट रीपे कर दिया। तो उनकी बैलेंस शीट्स जो हैं इस समय मोर देन ग्रीन है। और हमारे को क्या लगता है कि इस समय जो जो एक्सपेंशन होंगी वो इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन नहीं होंगी, कोई के 30% बढ़ गया। जिस समय जो एक्सपेंशन होगी वो मल्टीपल्स में होने वाली है, 2x 3x टाइप एक्सपेंशन होंगी। सीमेंट इंडस्ट्री जो है मतलब 5-7 साल पहले तक तो अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद तो अभी 1-1.5% से ही ग्रो कर रही है। लेकिन उनकी भी बैलेंस शीट्स बहुत ही स्ट्रांग है और उनके पास तो एक्सपेंशन करने के लिए कोई जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। मोस्टली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन आने वाली है। रिफाइनरीज, आप मतलब ऑफ कोर्स कोविड के दौरान हमने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन ऑर्डरिंग जो थी रिफाइनरीज की वो कोविड टाइम्स में भी बहुत अच्छी से चल रही थी। केमिकल इंडस्ट्री तो इंडिया की बहुत अच्छी चली रही है, वहां पे भी 2x 3x की कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। फूड प्रोसेसिंग, एथेनॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जहाँ पे पहले तो हम शुगर के मोलासिस से हम एथेनॉल बनाते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप सीधा शुगर केन से ही आप एथेनॉल बना सकते हो। और अभी तो 6% की ब्लेंडिंग है, जो कि तकरीबन 15% तक की ब्लेंडिंग जा सकती है। और गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त पुश है इस पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो। इंडस्ट्री 4.0, इट इज अबाउट डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स। ये जो डिमांड है, यहाँ से जो डिमांड आएगी बहुत बहुत ही जबरदस्त डिमांड है। इनफैक्ट ये डिमांड ग्लोबल डिमांड रह सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया है। डेटा सेंटर्स, जो कि इस डेटा को हैंडल करने के लिए, उसमें हमारे को लगता है कि 5 गुना जंप आ सकता है और तकरीबन 75 से 80 हजार करोड़ तक की एक्सपेंशन जो है वो आनी चाहिए, की इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी चाहिए। इंडियन रेलवेज एक सोता हुआ जायंट है हमारा, जो कि जागने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आई थिंक इलेक्ट्रिफिकेशन, इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड, making modern coaches, renovations of railway station, infrastructure. इंडियन रेलवेज में तो अभी जिसको कहते हैं कि अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो अभी पिक्चर इंडियन रेलवेज की तो अभी जिसको कहते हैं शुरू शुरू अभी तो सिर्फ कमर्शियल, शुरू के कमर्शियल ही चल रहे हैं, अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई। ये तो ब्राइट साइड मैंने समझा दी आपको। रिस्क्स क्या हो सकते हैं? ये दुनिया जो है वो अगले अगले 100 साल में कौन इस दुनिया को डोमिनेट कर इस ग्लोब को डोमिनेट करेगा? क्या है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज डोमिनेट करेंगी या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डोमिनेट करेंगी? इसमें काफी लड़ाई चल रही है इस समय, और अगले 10-15 साल के अंदर ये तय होगा। मे बी ये हो सकता है वायलेंस भी हो इसमें, बट ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये किस डायरेक्शन में जाएगी, ये डिपेंड करता है कि ये एक रिस्क हो सकता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स जो है, अभी इंडिया अपने आप को अलग नहीं रख सकता है ये जियोपॉलिटिक्स से, क्योंकि अगर कुछ साउथ चाइना सी में या कुछ ताइवान में कुछ काम होगा तो इंडिया को मतलब किसी ना किसी के साथ तो अलाइन करना ही पड़ेगा। और अपना बॉर्डर भी इंडिया का एक्टिव बॉर्डर हो गया है। लेट्स सी कि वहां पे क्या होता है। क्लाइमेट चेंज, मतलब हम अभी आज ही न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि COP26 की फिर नेगोशिएशंस हो रही हैं। इंडिया काफी चीजों में काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन कोल एक काफी कंटेंशियस इशू है। मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग कोल बंद कर दें। आई डोंट नो, मतलब ये आई थिंक ये काफी बड़ा इशू हो सकता है कि
जो फॉरेन कैपिटल है हमारी कंट्री में आए या ना आए, अगर हम कंप्लाई नहीं करेंगे। सो आई थिंक दिस इज लाइक हमारी गर्दन उन लोगों के हाथ में है इस समय as far as climate change is concerned. But I think we have scored very well on many parameters. So, and we are a large economic power. So I think we should be able to negotiate something for ourselves. जो टेक रेवोल्यूशन है, जो चाइना ने, इनफैक्ट चाइनीज इस समय मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री कही जानी चाहिए, इवन मोर एडवांस्ड इन यूएस। अब जो ये नई 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग कितनी जल्दी कैचअप करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी मॉडर्न हो सकती है और हमारी कंपनीज कितनी बड़ी हो सकती है टू इम्प्लीमेंट दीज सॉल्यूशंस अब्रॉड। तो दैट इज अ बिग चैलेंज। और अभी मेरे को अपने लैंडस्केप में कोई बहुत ज्यादा अच्छी कंपनियां दिखती नहीं है जो कि इस चैलेंज को टेक अप कर सके। I think government will probably need to push its best people to for us to make some headway here. Of course financing और banking system जो है वो जिस स्पीड से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, उस स्पीड से बैंकिंग और फाइनेंसिंग सिस्टम भी बढ़ना चाहिए। कैपिटल की इस समय कोई कमी नहीं है दुनिया में, बट क्या हम उस कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के अंदर अट्रैक्ट कर पाएंगे? आई थिंक ये देखने वाली चीज है। हमारे हिसाब से जो हम नेक्स्ट फेज के लिए जो सेक्टर्स को देख रहे हैं वो ब्रॉडली ये हैं। बैंक्स ऑफ कोर्स रहेंगे ही। ऑटोमेशन में जो कंपनीज हैं जैसे सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, लार्सन एंड टूब्रो की टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, कैपिटल गुड कंपनीज हैं जो कि स्टील, सीमेंट, इन सब कंपनीज के लिए काम करेंगी। स्टील एज अ सेक्टर, सीमेंट एज अ सेक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक लार्सन एंड टूब्रो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट कंपनीज, और इंडस्ट्री 4.0 की कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज अगेन लिस्टेड स्पेस में भी कम है, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे को दिख रहा है कि रोबोटिक्स की कुछ कंपनीज लिस्ट होनी शुरू हुई हैं। प्लस ये जो प्राइवेट इक्विटी स्पेस में काफी एक्टिविटी चल रही है अबाउट दीज कंपनीज। डेटा सेंटर्स, आई थिंक ये इनको सेटअप करने के लिए इनको आई थिंक जो आईटी कंपनीज हैं, इनफैक्ट इंडिया के अंदर अभी अगर आप देखेंगे तो सैमसंग चाइना में कुछ अपने सेलफोन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, अभी वियतनाम में हो रहा है या इंडिया के अंदर हो रहा है। तो इस तरह से काफी जो कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी इंडिया के अंदर एक वर्ल्ड स्केल की मैन्युफैक्चरिंग जो है करनी शुरू करेंगे। फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब ग्राइंडिंग मीडिया, वेल्डिंग इक्विपमेंट, इस तरह के एडेसिव्स, कोटिंग मटेरियल्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होंगे। ईवी रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो उनकी मोटर्स बनाने के कंपोनेंट्स, इवन एक छोटी सी कंपनी हम लोग हमारे परवाणु में है कॉस्मोफेराइट्स करके, वो अभी भी बहुत छोटी है, लेकिन 20 रुपए का शेयर आज 160 रुपए हो गया है इन लेस देन 1 ईयर। तो वो क्या बनाती हैं, छोटे मैग्नेट्स बनाती है जो कि आगे सेलफोन्स वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर वो यूज होने हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो बड़ी बन सकती हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है। मतलब ये कुछ वैसा इस समय माहौल है कि जैसे मारुति ने जब पहला प्लांट अपना एस्टेब्लिश किया था गुड़गांव में, तो वो नॉर्थ इंडिया में सारे उनकी जो वेंडर डेवलपमेंट की टीम थी घूम घूम के जाते थे और छोटे से छोटे यूनिट के पास जाते थे, बोलते जी हमारे लिए बनाओ। और आज वो 20-25 साल के अंदर वो छोटे यूनिट्स मतलब हजारों करोड़ की टर्नओवर्स कर रहे हैं, एंड दोज फैमिलीज हैव डन एक्सट्रीमली वेल। अगर आप हीरो होंडा देखें, मारुति देखें, आई थिंक इस समय जो माहौल है मैन्युफैक्चरिंग का और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का, वो कुछ उस जमाने जैसा माहौल लग रहा है मेरे। सोलर,
एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी लग रही है। और मेरे को लगता है कि मतलब ये रिलायंस और अडानी के कारण आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी अपनी कंट्री के लिए बन सकती है। कुछ कंपनीज जो कि हम समझते हैं कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट इन कंपनीज को हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कंपनीज जो हैं अगर अच्छे प्राइसेस पे मिलेंगी तो हम लोग आपको कंटिन्यू करेंगे इनको रेकमेंड करने में। एक इंटरेस्टिंग फंड है डीएसपी म्यूचुअल फंड का, टाइगर फंड। अगर मौका मिलेगा तो आप जरूर उसको देखिएगा। इसके अंदर काफी जो हमने कहा है वो काफी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो काफी उसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो और मेरे को लगता है कि वो ये डीएसपी टाइगर फंड जो है वो अलाइव है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये और डीप स्टडी करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़ाएगा। सो आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने सोचा था आधे घंटे में खत्म करूंगा, बट तकरीबन 50 मिनट हो गए। बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस नाउ। तेजपाल जी, ओवर टू यू। Yeah, good afternoon, everybody. We welcome your queries. You can just put it on the chat, and Neeraj will then answer the specific questions. Hello everyone ji. Neeraj ji, first of all, I would like to congratulate again on your 51st birthday. Many congratulations. Thank you so much, sir. Thank you very much. और बहुत मेरे को तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और बाकी आज भी मैंने बड़ी तसल्ली से आराम से आई वाज वेटिंग, क्योंकि सूरज जी बार-बार मैसेज डाल रहे थे आज का कि जो आपकी स्पीच, मतलब वो जो बातें आप मुझे समझाते हो वो काफी सारी इसमें थी, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया सारी चीजों को। और मतलब काफी क्लैरिटी से आप ये कह सकते हो। अब मेरे 2-3 बड़े छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं साथ साथ नोट कर रहा था। हाँ जी। जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी ना, तो आपने एक वर्ड यूज किया था, मार्केट इंटेलिजेंस। आपने बोला कि मार्केट जो है वो अपने आप में ही बहुत इंटेलिजेंट है, कि वो प्लस माइनस अपने आप खुद ही जज कर लेती है। तो एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इंटेलिजेंस का क्या मतलब है मार्केट इंटेलिजेंस? वेल सर, थैंक यू वेरी मच। आप यू आर अ डियर फ्रेंड, एंड आपसे बात करके मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट का इंटेलिजेंट होने से मेरा मतलब ये है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर को प्रेजेंट में बड़ी जल्दी डिस्काउंट कर देती है, अगर उसको लग रहा होता है कि, क्योंकि देखो मार्केट एज अ मेरा जब मैं मार्केट कहता हूँ तो मेरा मतलब कोई पर्सन का नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो कुछ प्लेयर्स को जिनको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, वो ऑलरेडी वो चीजें, उन स्टॉक्स को खरीदते रहते हैं जिसमें कुछ एक्टिविटी होने वाली होती है, या उनको कुछ स्टॉक्स को बेचते रहते हैं जिनमें कुछ एक्टिविटी नहीं या कुछ खराब होने वाला होता है। तो जो चेंजेस हम 6 महीने के बाद देखते हैं, जो इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं वो ऑलरेडी वो काम कर चुके होते हैं, और वो प्राइसेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे सर, तो इंडेक्स जो है वो आज 60,000 हो गया है। ऑफ कोर्स ये जो राइज है, इतनी रैपिड राइज मैंने देखी नहीं थी और ना ही मैंने एंटिसिपेट की थी। लेकिन जो आगे हो रहा है, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट किस तरीके से एकदम लिबरल हो गई है, ये प्राइवेटाइजेशन की बातें करने लग गई है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है। और पब्लिक सेक्टर की जो प्राइवेटाइजेशन की हम बातें सुन रहे हैं, ये पीएलआई जो हर सेक्टर, कितने सेक्टर्स के अंदर पीएलआई शुरू हो गई है। तो ये जो चीजें हैं वो बाद में आ रही हैं, लेकिन मार्केट ऐसी चीजों को ऑलरेडी सेंस कर चुकी है। हो सकता है कि आगे जाके ये मार्केट थोड़ी करेक्ट कर जाए,
लेकिन ब्रॉडली मार्केट को पता है कि ये चीजें जो हैं आगे अगले 5 साल के अंदर ये अच्छी होनी है। तो मेरा मार्केट का इंटेलिजेंट होने का यही तात्पर्य था। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब जैसे इसमें आप जो बात कह रहे हो तो उस चीज से, जैसे मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आपको मालूम है, मे बी 1.5 ईयर से मैं फॉलो कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को, पर मेरी जो एनालिसिस या मैंने जो देखा है पिछले 1.5 साल में, उसके पहले का मुझे मालूम नहीं है कि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जिनको भी आप कह रहे हो कि भाई यहाँ, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ BHEL का, कि न्यूज आई वो 32 रुपए से शेयर उठ के जो है सीधा जो है 71, 75, 77 रुपए तक चला गया, 80 रुपए तक चला गया, फिर वापस आ गया 50 में, फिर से न्यूज आ रही है कि जी हाँ जी प्राइवेट फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये एक तरह से ये कि जिसको मालूम है कि उसने ऊपर जाना है वो उसमें पैसा लगा रहा है और वेट कर रहा है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने BHEL का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया राजेश जी। देखो BHEL जो है, अगर सोलर में पैनल्स एक पार्ट हो गया तो इन्वर्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पैनल में बिजली जनरेट होती है उसको ग्रिड लायक बनाता है। BHEL के पास वो टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, और मेरे को लगता है कि क्योंकि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होगी, तो BHEL को अगर वो प्राइवेटाइज ना भी हो तब भी उसको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमने BHEL को राइट ऑफ किया हुआ है क्योंकि वो स्टीम टरबाइन बनाती है, कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लगने नहीं है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है उसके इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होने का, ये हमारे को मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है। तो जिनको पता है वो मतलब वो खरीदेंगे उसको, और बाद में जब ये चीज प्ले आउट करेगी तो हम देखेंगे कि उसका प्राइस हो सकता है 2-3 गुना हो जाए। अगेन मेरी तरफ से मैं ये नहीं कह रहा BHEL खरीदना चाहिए, बट मेरा पॉइंट ये है जो मैंने एक्सप्रेस किया। इसमें सर, जैसे शेयर की जो बेसिकली जो वैल्यू है वो सेंसेक्स के ऊपर, सेंसेक्स आज 60,000 है, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका भारतीय आज 700 रुपए है, उसका बिजनेस चल रहा है, भारतीय का 700 रुपए और सेंसेक्स 60,000 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 60 का अगर 70,000 हो जाएगा तो भारतीय 700 से 1,000 का हो जाएगा, हो सकता है कि वो 600 का या 500 का ही रह जाए, और वो 2,000 तो भी हो सकता है। हाँ 2,000 भी हो सकता है, करेक्ट। तो सेंसेक्स के ऊपर जाने से या नीचे आने से किसी भी शेयर की वैल्यू पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं आता ना। शॉर्ट टर्म में तो बहुत इफेक्ट आ जाता है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म में जनरली जितना बिजनेस में ताकत होती है उतना वो ताकत दिखाता है सर। ठीक है, ये मैं वैसे ये तो बातें आपसे वैसे भी पूछता रहता हूँ। उसके बाद जैसे जो लिस्ट ऑफ अभी लास्ट में जब आपने क्लोज किया है, जी तो आपने जो बताए हैं कि भाई इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें आपने फार्मा क्यों नहीं इंक्लूड किया? सर ये क्योंकि ये जो थीम है वो केपेक्स ओरिएंटेड थीम की मैं बात कर रहा था। वो मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मा नहीं अच्छा सेक्टर नहीं है, बट मैं तो सिर्फ जो हमारे हिसाब से नेक्स्ट फेज जो है, जो फोकस होना चाहिए हमारा वो, और शायद इनका फोकस अभी है नहीं है। अभी हम L&T को नहीं देखते हैं, अभी हम BHEL को नहीं देखते हैं, अभी हम सीमेंट कंपनीज को नहीं देखते हैं, तो उनको देखना चाहिए सर। मेरा ये इस प्रेजेंटेशन का फोकस ये था। मतलब आपका मतलब ये है कि जो सेंसेक्स के ऊपर जाने में जिन जिन सेक्टर्स का भी हाथ है वो उन पे हाईलाइट किया आप? नहीं, मेरे सेंसेक्स का नहीं, मेरे को लगता है ये जो बिजनेसेस हैं जो मैंने आपको भी लिस्ट आउट किए, वो बिजनेसेस अच्छा कर सकते हैं। सेंसेक्स के साथ मेरा कोई इनको कोरिलेट करने का कोई इच्छा थी नहीं सर। आपने जैसे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट की पॉलिसीज की जो है मतलब काफी प्रेज की है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, पर एक्चुअल में अगर ऑन द ग्राउंड लेवल देखा जाए, जैसे मैं छोटा मैन्युफैक्चरर हूँ, तो जो MSMEs हैं जिनको हम बोलेंगे उनको कोई इफेक्ट उस चीज का मिल नहीं रहा है। तो नहीं, बल्कि खराब इफेक्ट हो रहा है सर, क्योंकि MSME सबसे एडवर्सली इफेक्टेड है। कोविड क्राइसिस क्या, उससे पहले भी जो MSME था वो बहुत ही एडवर्सली इफेक्टेड था ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आप GST देखें, इनफैक्ट इवन कंप्लायंस देखें, तो ये स्मॉल एंटरप्राइजेस नॉन कंप्लायंट हैं। सबसे ज्यादा जो
जो लॉ की अवेलना करते हैं वो एमएसएमई करते हैं। तो गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि भाई या तो आप कंप्लाई करो या फिर आप मर जाओ। गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है अपने अपने मामले में। हाँ, तो आई थिंक एमएसएमई को अपनी नीश जो है वो ढूंढनी चाहिए। वो पुराने तरीके चलने नहीं वाले हैं सर। मैं समझ गया आपको सर, मैं भी यही सोच रहा था आपकी बात। हाँ। तो सुनते कि हमारे को भी कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस करना पड़ेगा कि हम जो अभी जिस तरफ को सब चीजें चल रही हैं उसमें से किसी के साथ हम भी अटैच हों, ताकि उसका बेनिफिट हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बेल सर, थैंक यू सो मच सर। Neerji, Mr. Tharakan had put in a query on the chat, and Aditya Mishra ji was kind enough to also put I think a kind of a reply on that. And just request you to just look at the chat and see if we can have an. मेरे को क्या लगता है सर कि जो राइजिंग टाइड होती है ना, वो हर बोट को रेज करती है। मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं करती है कि वो बोट गरीब की है या बोट अमीर की है, या वो बोट अंबानी की है या अडानी की है या एक पुअर मैन ऑन द स्ट्रीट की है सर। सो व्हाट हमारी कंट्री को अपने शैकल्स तोड़ने पड़ेंगे। जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको और परवेसिव और वाइड स्प्रेड बनाना पड़ेगा। तभी हम ये जो पॉवर्टी है और ये जो इंडिसेस जिसमें हम लोग पुअरली रेट किए जाते हैं, उनसे हम उठ पाएंगे। इसका कोई और इलाज नहीं है सर। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितनी एफिशिएंटली या इनएफिशिएंटली जो काम करती है, अगर गवर्नमेंट को देखेंगे तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह, इससे फोकस तरीके से गवर्नमेंट काम। हेलो, आप सुन सकते हैं मेरी बात? हेलो प्रीतपाल जी, आप सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, यस। हाँ, ऑडियो क्लियर। हेडफोन थोड़ा डेड हो गया था। ओके। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही हमारे को लगता है कि जरूरी है टू एलिमिनेट पॉवर्टी। I may not have a very exhaustive reply to Mr. Tharakan's question, but I think this is I firmly believe that I think India has to do well economically. Tabhi, I think when the government will have money, it will be able to distribute more fairly. Thank you. Any other queries by anybody else, please? Because I think we are almost sort of 1 hour through, and I think while it's been great participation from all of you. So if there are any queries, we can always take it up on a one-to-one. Aditya Mishra ji, please say. Unmute. We'll just unmute you. Mishra ji, namaskar. नमस्कार नीरज जी, सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपको सर। एंड आपने ये दिन चुना हम सबको बताने के लिए अबाउट द सेंसेक्स 60,000। सो आई मतलब इट कुडंट हैव बीन अ बेटर डे। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी लोग ने कहा है कि आपके प्रेजेंटेशन के बारे में जिस तरह आपने डिफरेंट सेक्टर को जोड़ के एक तार को जोड़ी और एक कहानी बनाई जिसमें इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में बताई गई, तो सुन के काफी अच्छा लगा। और मतलब इट आल्सो काइंड ऑफ रीआइटरेट्स कि वी आर ऑन द राइट पाथ। चैलेंजेस होंगे, मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक जब रिग्रेशन ट्री बनाते हैं तो उसमें नॉइज होता है, फैक्टर छोटे छोटे ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन देखनी पड़ती है लाइन 5 साल में कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है कि नहीं। बिल्कुल। सो वो देखना पड़ेगा कि लाइन ठीक ठाक जा रही है कि नहीं। आपकी 2 बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये आई कैन इको फ्रॉम माय सेक्टर। आई वर्क इन द रिन्यूएबल सेक्टर। ये जो PLI स्कीम से जो इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, इट इज ऑफ अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर। आप अगर लास्ट 5 दिन की न्यूज देखें, जो आप नीरज जी कह रहे थे,
every big oil and company wants to invest in India in the renewable sector. And we have to give credit to them that they are very, very smart investors. They know where to put their money. Correct. अगर वो ये सोच के कर रहे हैं कि इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पुटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स एंड व्हाटएवर, देयर इज समथिंग व्हिच इज वी आर डूइंग राइट. सो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है. और एक और कोरोलरी एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, जो मैंने देखी है, which actually supports your contention. किसी ने पूछा MSME SME सेक्टर का क्या होगा. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. गवर्नमेंट, ये आपने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में ज्यादा बात नहीं की नीरज जी, जो आपको स्पेशल टॉपिक एक इंक्लूड करना चाहिए कभी बात करने के लिए, बिकॉज उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इज ऑफ अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑल टुगेदर. एक छोटे से सेक्टर में, गैस सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए, स्टील पाइपलाइन, MDP पाइपलाइन, केबल्स के क्या डिमांड बढ़ जाते हैं. और सर्विस कौन करेंगे? ये जो वहाँ के लोकल MSME और वो सब हैं. तो आई थिंक आपकी बात सुन के आई हैव reiterated a lot of thought process in my mind, and I think a lot of investment decisions now will have to be based on with a 4 to 5 year time horizon rather than thinking 3 to 6 months, 1 year kind of thing, because ये काफी different nature of game हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से. और मिश्रा जी, इस गवर्नमेंट ने ना काफी पॉलिटिकल कैपिटल एक्वायर कर लिया है ना 7 साल के अंदर, बिना कोई ज्यादा कोई करप्शन के स्कैंडल किए या कोई उल्ट काम किए. आई थिंक ये समय आ गया है कि वो ये पॉलिटिकल कैपिटल को अग्रेसिवली खर्च कर सकते हैं. और अगर इनकी नीयत ठीक रही, क्योंकि लास्ट टाइम भी कांग्रेस के पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल थी, लेकिन उन्होंने सारी कैपिटल जो थी वो करप्शन में खर्च कर दी. करेक्ट. तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट ठीक डायरेक्शन में चले तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है सर, ये मैं आपको बता नहीं सकता. मैं छोटी सी स्टेट को बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, मैं छोटे वहाँ पे एक रूरल एरिया में काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, और वहाँ पे लोग पंचायत लेवल पे कितने जागरूक हैं, ये मैं मतलब वहाँ जाके ही मेरे को रियलाइज हुई कि एक लो करप्शन स्टेट में कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है इस समय कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं. No. So again, thank you so much for Thank you. connecting all these dots and helping us to think about the big picture, Neeraj ji. Yes sir, yes sir. I think it is very important कि हम पॉजिटिवली अपनी कंट्री की तरफ देखें, और जो अगले 5-7 साल के अंदर होने वाला है उसका जरा सा अंश भी अगर उससे हम फायदा उठा सकें तो आई थिंक फायदा बहुत बड़ा हो सकता है. जी सर, जी सर. थैंक यू. Friends, I think we'll call it a day. This presentation, we'll try to share it through a link this thing in a few days' time. And again, the participants on a one-to-one basis, they can get back to us for any specific query. So thank you everybody for attending, and have a great weekend. Thank you so much for your participation, and we would look forward to any queries that you may have. This is a small effort, and we thought that at least we should echo our thoughts very we should articulate our thoughts clearly to you, sir, through this medium. Thank you so much, sir.